Assalamualaikum everyone, and a warm welcome to all of our participants, mentors, and spectators tuning in from across Pakistan. So today I'm your moderator. My name is Meghna. I'm from Pakistan Stock Exchange, and I'm serving here as an assistant manager of the product management research department. So it is an honor to serve as your moderator for the PSX Battle of the Bulls 2025, the nation's ultimate virtual trading showdown. So I hope you all are doing well. First of all, I would request all participants to share their video. आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि बेटर ऑफ द बुल्स में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपकी क्या लर्निंग हुई। सबसे पहले हम विनर्स अनाउंस करेंगे सीएफए स्कॉलरशिप के लिए, जिसके लिए हमारे साथ हैं मिस सरवत एहसन। शी इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सीएफए सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। So she will announce winners for the CFA scholarship. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam. Thank you so much for giving me this opportunity early on. Thank you for a very warm welcome to all the participants, PSX, and all the stakeholders who've joined this webinar. I want to again acknowledge and thank PSX for providing us with this opportunity to give you that scholarship. A bit of a brief background. You do understand that CFA Institute is a US-based, not-for-profit organization, and it conducts the CFA exam, and it has a few other portfolio products as well, products in their portfolio such as ESG and climate finance and all of that. Having said that, we saw your enthusiasm and the number of participants who wanted to be part of this PSX's Battle of the Bulls program. So CF Institute acknowledged and recognized that effort and your passion. So CFA Society Pakistan, which is based in Pakistan and is a member society of all the CFA charter holders in Pakistan, who become our members. So we are very happy to announce 2 scholarships for the participants. And I have to build all the, suspense and all of that. So I'm going to keep doing this. So our first, so we did conduct a lucky draw out of, over 150 participants who had applied for this scholarship. And our first name that we got was Miss Khadija. Is Khadija here? Miss Khadija, are you here? आप चैट में बता सकते हैं कि are you here? Khadija Mushtaq, are you here? She's there. Yes. Yeah, she's here. Khadija, we'd like you to switch on your video if you haven't, and we'd like to request all of you to please a big round of applause. Congratulations. You are here. Congratulations, Khadija. Are you here? Assalamu alaikum, everyone. Yes, I am here. Khadija, would be great if you could switch on your video so we can take a picture of you as well. And congratulations. Just give me a second for that. Sure. Just a second. Our second winner, the lucky person who got in his name in the draw is Mr. Saud Alam Khan. Saud, are you here? Congratulations, Mr. Saud Alam. So it's probably not. Allow me to start it. I'm not. Is that Khadija? Is Saud here? I'm unable to start. Can you allow me? Oh, okay. Maybe the. So while the hosts are helping Khadija, I'd like to remind you to Khadija and Saud that you have to register for the exam by the 15th of July.
your names will be forwarded to CFA Institute. They will send you an email with all the details. You'll have to make the payment and make the account and register for the exam by the 15th of July, and then there'll be separate windows in which you can give the exam. So we hope that you will आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और आप दोनों जो हैं वो you will work hard to clear it, and we are very, very hopeful that you will. And I'll encourage all the other students to apply for access scholarships if they haven't done so already. CF Institute also gives directly scholarships to those students who have been who are interested. And all the best to everyone. And thank you. And that's all from me. Do we have Khadija's picture? I am still unable to start my video because my. Please You allow Zoom. should be. Complete access उनको बोले आप start कीजिए, we are getting the complete access. मिस खदीजा, हमने आपको कंप्लीट एक्सेस दे दिया है, आप ऑन कर ले, हो जाएगा वीडियो। अगर आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है PSX की, I'm not sure if it is, so then we can probably be able to see everyone in a screen. If we can have all of you in one screen, which I'm finding a bit difficult to get everyone in one screen. Is there a presentation on? अली साहब से आप बोलिएगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन ठीक है। खदीजा प्लीज अभी आप अपना वीडियो ऑन कर लें। Khadija, can you hear me? Yes. Can you see me now? Yes. Thank you so much. If you can have the spotlight removed and have all the participants in one picture, also that would be great. It's fine now. Thank you. Congratulations, Khadija. CF Institute and CFA Society and PSX will be in touch to take this forward, and hopefully, inshallah, we should be able to work. Sure. Thank you so much. I will, inshallah. I'm trying very hard to prepare for my CFA exam. I will, inshallah, clear that also. Great. And I understand Saud Saab nahi hai yahan pe, so a big round of applause for both of you, and congratulations and thank you. And that's all from me. Thank you. So happy for you. Okay, now let's start. Thank you. First of all, I would like to thank Ma'am Sarwat Ehsan for announcing the winners, and congratulations to both of you, Ms. Khadija and Mr. Saud. Now, I would like to request Mr. Ali Najib, Deputy Head of Trading, Arif Habib Limited, to present a presentation for a presentation. So, can you please start the presentation? Thank you so much. Assalamu alaikum. Myself, Ali Najib. It's a pleasure. It's a pleasure to on behalf of Arif Habib, I'm presenting this presentation. Basically, Arif Habib, as you all know, is a powerhouse of Pakistan capital market and a leading investment banking, securities, brokerage, and economic research firm. We have a lot of awards and accolades, and going forward, I think Pakistan PSX needs a brokerage house like Arif Habib to further create awareness and to create more account and to engage more individual as far as Pakistan capital market goes. So I think Arif Habib brokerage firm has a key role to create awareness among Pakistani citizens, because we have a very limited ratio, very low ratio as far as Pakistan capital market goes. So I think PSX and leading brokerage house like Arif Habib has to work together to create more awareness and to add value to the capital market. Let's move towards research and analysis tool.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से जो भी बिगनर्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में अपनी रिसर्च का आगाज करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जरूरी होता है कि आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यूजुअली हमारी जो है वो एक मशहूर बात है पीएसएक्स के हवाले से। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि पीएसएक्स में आप बहुत आसानी से पैसा बना सकते हैं, और जब आते हैं लोग पीएसएक्स में इस फिलॉसफी और इस फिनोमेना के थ्रू, और फिर जब वो पैसे लूज कर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इट्स अ गैम्बलिंग, इट्स ऑल। तो इस तरह की जो मिसकॉन्सेप्शन है, आई थिंक इसको रिमूव करने के लिए पीएसएक्स और जितने भी लीडिंग ब्रोकरेज हाउस हैं उनको काम करना होगा, और आई थिंक इसीलिए ये जो प्रेजेंटेशन कंडक्ट की जा रही है। तो अगर मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं और स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में आपको इसलिए आना चाहिए बिकॉज अगर आपके पास 100,000 पड़े हुए हैं या आपने अपने 100,000 कैरी कर रहे हो अपने पास हैं, तो आपने ऑलरेडी पेपर में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है जी। अब होता ये है कि वी ऑल लिव इन कैपिटलिज्म सोसाइटी, जहां पे एक फिनोमेना है इन्फ्लेशन, जिसको उर्दू में अफरात-ए-ज़र कहते हैं। तो अगर आपने 100,000 अपने रखे हुए हैं और उस पर आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो 100,000 एक साल के बाद उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो अगर आप तो इसमें मकसद कहने का ये है कि आपने वैसे ही इन्वेस्टमेंट तो की हुई है पेपर में, लाइक करेंसी पेपर इज ऑल्सो अ पेपर। सो व्हाई शुड नॉट वन इन्वेस्ट इन बेटर पेपर, जहां पे आपको पता हो कि मैनेजमेंट है, एक टीम है जो कि काम कर रही है और जो एक कंपनी को ग्रो कर रही है, और इवेंचुअली उसमें आपका जो है वेल्थ क्रिएशन भी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम किसी ऐसी कंपनी में अपना जो आइडल कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, या अगर हम अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, दे हैव अ गुड इनकम स्टेटमेंट वेयर they show growth on a consistent basis, they have a good cash flows, कि कहीं उनके कैश फ्लोज कंपनी में कैश फ्लो जनरेट होता रहे, सो दैट अगर कैश फ्लो जनरेट होगा तो दे कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट अदर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, इसके लिए हमें कहाँ से ये सारी चीजें मिलेंगी? तो देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज लाइक ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, आरिफ हबीब रिसर्च डेटाबेस है। वो आप ऑब्वियसली वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, बट व्हेन यू बिकम अ क्लाइंट एट आरिफ हबीब लिमिटेड, you can send your query with regards to any company. We are we really appreciate that queries, और हम will try our best कि हम उसको जो है वो as soon as possible उसको satisfy करें। सेकेंडली, आप ये देखें कि एक तो होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? देखें, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, एवरीबॉडी नोज के ऑयल के यूजेज क्या है, एवरीबॉडी नोज के गोल्ड इज अ सेफ हेवन कंसीडर्ड सिंस लास्ट 3000 ईयर। पिछले 3000 साल से अगर हम देखें तो गोल्ड का कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ। तो अब कैसे पता चले कि गोल्ड में कब एंट्री लेनी है और गोल्ड में कब जो है वो एग्जिट करना है? तो टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म लाइक ट्रेडिंग व्यू, मेटा स्टॉक, विजुअल टूल्स वगैरह, ये सारे आपको हेल्प करते हैं। दे हेल्प यू टू फाइंड आउट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर यूज होते हैं लाइक आरएसआई, मैकडी, बॉलिंगर बैंड्स एंड मूविंग एवरेजेस, which indicate you, which actually help you to find out exact entry and exit points, so that you can create your wealth and you can earn some money। ठीक है जी। इसके अलावा स्टॉक स्क्रीनर है, जहां पे आप स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन देखते हैं, जैसे आरिफ हबीब का ट्रेड कास्ट है, जहां पे हम डेली बेसिस पे स्टॉक की स्क्रीन देखते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक स्क्रीन होती है जिसमें हम सेक्टर वाइज उसको डिवाइड करते हैं, और उसके अंदर हर सेक्टर के अंदर डिफरेंट स्टॉक्स रखते हैं जो हमें देखना होते हैं और जिनकी चेंजेस देखना होती हैं। तो ये आपको हेल्प करता है स्टॉक स्क्रीन के, आपको अप टू डेट रखता है रियल टाइम फीड से और मार्केट एनालिसिस से। इसके बाद अगर आपने ये देखना हो कि किस कंपनी की में क्या हो रहा है, उस कंपनी के अंदर जो है वो गोइंग फॉरवर्ड उसके पास वो किस तरह से काम कर रही है और गोइंग फॉरवर्ड वो क्या करने वाली है, तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इंक्लूडिंग आरिफ हबीब जो है वो एक्विटी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं डिफरेंट कंपनीज पे। जैसे आज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस दिया पाकिस्तान ऑयल फील्ड का, तो उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने तल ब्लॉक में जो है वो डिस्कवरी की है, जिसके अंदर जो है वो डेली बेसिस पे तकरीबन 5,000 बैरल ऑयल निकलेगा और तकरीबन
22 मिलियन MFCFD जो है वो गैस निकलेगी। तो उसका इम्पैक्ट हमने हमारी रिसर्च से निकाला है, तकरीबन 7.79 का इम्पैक्ट है ऑन एनुअल अर्निंग ऑफ पाकिस्तान ऑयल फील्ड। तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो आपको आरिफ हबीब रिसर्च रिपोर्ट्स के थ्रू और आरिफ हबीब की इंटेंसिव जो रिसर्च टीम है ऑन अ डेली बेसिस इस तरह की चीजों पे काम कर रही होती है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो व्हेन यू बिकम अ क्लाइंट, और ये वैसे भी जनरली भी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह पर अवेलेबल होती हैं हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स, तो उनसे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। देन वी गो टुवर्ड्स इकोनॉमिक एंड सेक्टर डेटा टूल्स। अच्छा, किसी भी कंट्री की एक मैक्रो इकोनॉमी को समझने के लिए उसके डेटा को एनालाइज करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हमने देखा है कि वी हैव सीन बूम बस्ट साइकिल since 2017. I mean, we've witnessed 3-4 to boom bust cycle since 2017. In 2017, our stock market was trading at 50,000. In 2019, it went low as 29,000. Then it went back to 44,000. Then we had a COVID में हमारी मार्केट दोबारा 28,500 पे चली गई। Then we जब कोविड के बाद चीजें बेहतर हुई तो हमने दोबारा 48,000 टच किया। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो अनस्टेबिलिटी आई थी, वी हैव अ रिडीम चेंज एंड ऑल, उसकी वजह से मार्केट दोबारा प्रेशर में आई थी और मार्केट ने अपना लो बनाया था 39,500। तो ये सारी चीजें जो है ये किस तरह से पता चलती हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ मूव करने वाली है। ये सारी चीजें आपको मैक्रो इंडिकेटर होते हैं। जैसे कल हमने देखा है स्टेट बैंक का एफएक्स रिजर्व, ये स्टेट बैंक हर थर्सडे को जो है वो रिलीज करता है। कल $2.6 बिलियन से स्टेट बैंक के एफएक्स रिजर्व कम हुए। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट वीकली डिक्लाइन एज फार एज एसबीपी एफएक्स रिजर्व गोज। अब कोई नया बंदा होगा या किसी को जिसको नहीं पता हो, वो तो सिर्फ हेडलाइन पढ़ेगा, वो कहेगा कि भाई स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो इतने गिर गए हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली चाइनीज हमने जो लोन है उसकी पेमेंट की है, इट विल रीइंबर्स इन दिस वीक। तो जो नेक्स्ट थर्सडे को जो स्टेट बैंक नंबर रिलीज करेगा, दैट विल अप आई थिंक अराउंड 2.5 to $3 बिलियन। तो ये आपका एक हफ्ते में ही जो है ये चेंज हो जाएगा। तो यू शुड नो कि भाई मैक्रो इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे मेजरली जो मैक्रो इंडिकेटर जो रिलीज करते हैं उसमें स्टेट बैंक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। इसके अलावा डिफरेंट ग्लोबल जो बायोलेटरल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है वो भी अपने डेटा को रिलीज करते हैं, मॉडल फोरकास्ट करते हैं, कंट्रीज आउटलुक देते हैं, जिसमें IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। इसके अलावा वी हैव डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज लाइक S&P, मूडीज, ये सारी रेटिंग एजेंसीज कंट्रीज की जो है वो डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस करती हैं और उन पे रिपोर्ट निकालती है। तो जो बिगनर है, आई वुड सजेस्ट देम कि आप अपने जो है अपनी जो रीडिंग में इन सारी चीजों को लाएं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एज अ होल इन अ बेटर पोजीशन रिलेटिवली। ठीक है जी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, लाइक आप एक्सेल पे कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी जो पोर्टफोलियो अगर मैनेज कर रहे हैं तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, उसको मार्क टू मार्केट ऑन डेली बेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जनरल सी बात है कि न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू, मार्केट रिव्यूज के थ्रू डेली बेसिस पे जो मार्केट रिव्यूज लिखे जाते हैं डिफरेंट कंपनी से, लाइक आई माई सेल्फ राइट मार्केट रिव्यू ऑन डेली बेसिस टू मेक अंडरस्टैंड पीपल के भाई इन्वेस्टर के आज मार्केट में क्या हुआ और क्यों हुआ, एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मार्केट्स टुडेज एक्शन। अर्निंग कॉल्स निकालते हैं हम लोग कि भाई अब जैसे जून 30 मंडे को है, इसके बाद रिजल्ट सीजन शुरू होगा, तो वी विल हैव अ यूनिवर्स ऑफ ओवर 50 कंपनीज वेयर वी प्रोवाइड इन डेप्थ कवरेज, और हमारी सारी अर्निंग्स निकलती हैं, उनके साथ हमारी एक्सपेक्टेशन निकलती है कि इनके जो जून 30 की किसी की फिस्कल ईयर क्लोजिंग है, किसी की हाफ ईयर क्लोजिंग है, तो उनके क्या रिजल्ट आएंगे, अलॉन्ग विद द पे आउट, कौन कितना डिविडेंड दे सकता है। ये सारे एस्टिमेट्स जो है वो रिसर्च जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वैल्यूएशन मॉडल्स होते हैं, ये थोड़ी सी एडवांस चीजें। जैसे अगर आपको किसी कंपनी के बारे में किसी कंपनी को फोरकास्ट करना हो तो ये सारे मॉडल्स जो है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DCF, ये सारे मॉडल्स जो है वो यूज होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट फॉर कंटेस्ट पार्टिसिपेशन, कि भाई स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए। देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं और ये समझ के आते हैं कि आज मैं अगर 100 रुपए लगाऊंगा और कल 200 रुपए हो जाएंगे, तो यू आर नॉट वेलकम, बिकॉज आप अल्टीमेटली जो है वो अपने पैसों को जाया कर देंगे। बिकॉज कोई भी जगह दुनिया में ऐसी नहीं है जहां पे आप ओवरनाइट जो है वो, या ओवरनाइट या बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसे डबल कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल एवेन्यूज एज फार एज ग्लोबल कैपिटल मार्केट गोस। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप अपने 100 रुपीज व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट योर 100 रुपीज, तो आपके पास एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो
गोल होना चाहिए कि भाई मुझे अपने 100 रुपए का, अगर मैं इसको बैंक में रखता हूं तो मुझे उस 100 रुपए के 1 साल के बाद 111 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितने पैसे मुझे मिलने चाहिए जो कि मैं इक्विटी मार्केट के रिस्क को अफोर्ड कर सकूं। अगर मुझे 1 साल के बाद 111 रुपए मिल रहे हैं तो मैं इतना रिस्क क्यों लूं कि इक्विटी मार्केट में हूं। लेकिन अगर मुझे चाहिए 130 रुपए या 140 रुपए, अगर मैं बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो मुझे 150 रुपए 160 रुपए चाहिए होंगे। लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं तो मुझे 120 रुपए चाहिए होंगे। और अगर मैं मीडियम टर्म इन्वेस्टर हूं, ना कंजर्वेटिव हूं ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूं, बैलेंस अप्रोच के साथ चलता हूं, तो मुझे 130 135 रुपए ये हमारा स्टॉक मार्केट का रिटर्न हो सकता है और उससे आप इतने पैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये करना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आज इन्वेस्ट किए और आपको 30 रुपए चाहिए उस पर रिटर्न साल के आखिर में। तो आपने डिवाइड करना है 30 को 12 से, एंड 12 को आपने 4 से डिवाइड करना है। 12 से इसलिए डिवाइड करना है कि आपके पास एक मंथली एवरेज रिटर्न आ जाएगा जो कि आपको पूरा करना है। और मंथली एवरेज रिटर्न को अगर आप वीकली में डिवाइड कर लेंगे तो यू हैव अ 4 वीक, यू हैव अ रिटर्न ऑफ एवरी वीक व्हिच यू हैव टू अर्न ऑन while investing in capital market। तो इस तरह के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो यू विल अचीव अ बिगर ऑब्जेक्टिव इन एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसी तरह लोग और वेल्थ जनरेट। फिर आप देखें एक बड़े मशहूर जो है वो कहावत है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है अक्रॉस सेक्टर और मार्केट स्टेप जरूरी है। आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें, बिकॉज अगर किसी एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया एंड कोई मिसहैप हो गया उस कंपनी के साथ, तो आपकी जो सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो उसके अंदर फंस सकती है और यू विल एंडेड अप लूजिंग मनी। तो इट्स बेटर कि आप जो है डाइवर्सिफाई करें। और ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन जो है किसी भी पोर्टफोलियो की वो मैक्सिमम 10 स्टॉक हो सकते हैं। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आप 10 बिजनेसेस को एक्चुअली देख रहे होते हैं कि 10 बिजनेसेस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, उसके अंदर डे टू डे बेसिस पे चीजें क्या हो रही हैं, उनकी ग्रोथ क्या है, वेदर वो बिजनेस जो है वो मेच्योर है या ग्रोथ स्टोरी है या वो आगे कोई स्टार्टअप है। तो यू शुड एटलीस्ट हैव अ 10 स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम जाते हैं मैक्रो एंड मार्केट ट्रेंड एनालिसिस पे। वहां पे आप ये देख रहे होते हैं जैसे हमने लास्ट वीक देखा, लास्ट वीक की स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी थी वेयर स्टेट बैंक की स्टेटस को बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद 1% स्टेट बैंक कट कर देगा। बट उस वक्त जो है वी आर गोइंग थ्रू विद ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और उसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस was having a volatile session on daily basis, so it's very difficult कि ये जो है वो कहाँ पे जाके रुकेगा मामला। तो उस वजह से स्टेट बैंक ने कॉशियस अप्रोच अपनाते हुए जो है वो स्टेटस को रखा। इस तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फॉर द बिगिनर कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक एंड मार्केट ट्रेंड्स का भी अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। इसके बाद हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बेसिक 4-5 चीजें हैं जो कि बिगिनर लेवल पर पता होनी चाहिए, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड, डेट टू इक्विटी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए while taking any investment decision। Then technical and sentiment tools, sometime होता ये है कि जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसमें फंडामेंटली आपको जो आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो काम करते हैं मार्केट में, जो कि एक हफ्ते का व्यू लेके काम करते हैं या 15 दिन का जिनका ट्रेडिंग होता है या डे टू डे बेसिस पे जो काम कर रहे होते हैं, उनको फंडामेंटल्स इतना ज्यादा हेल्प नहीं करते, बिकॉज फंडामेंटल डज नॉट चेंज ऑन डेली बेसिस। वेयर अगर आपको डे ट्रेड करनी है तो उसमें टेक्निकल जो एनालिसिस है वो आपको बड़ा अच्छा असिस्ट करता है, क्योंकि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है, मैकडी बताता है और बहुत सारे ऐसे मूविंग एवरेजेस और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है जी। देन वी गो टुवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट। अब जब आप एक चीज आपने हमेशा ये सोचनी है व्हाइल टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि भाई मैं अपने 100 रुपए को कितना नीचे देख सकता हूँ। दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन वन शुड आस्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन एनी एसेट क्लास। ठीक है जी। अगर मैं अपने 100 रुपए को 90 रुपए देख सकता हूँ तो आई एम नॉट वेलकमिंग इक्विटी मार्केट, बिकॉज 10 रुपए नीचे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो तो स्टॉक मार्केट और एग्रेसिव एसेट क्लास इज नॉट फॉर यू। ठीक है। तो आप फिक्स इनकम में पैसे रखें। अगर आप अपने 100 रुपए को 25 रुपए नीचे देख सकते हैं, यानी 75 रुपीज नीचे देख सकते हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और वहां पे चूंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, समटाइम ऐसा होता है कि आप जो डिसीजन लेते हैं ड्यू टू अनसिस्टमैटिक रिस्क, जैसे फॉर एग्जांपल 12 जून को इजराइल ने ओवरनाइट अटैक कर दिया ईरान पर, तो अगर जिसने 12 जून को सुबह इन्वेस्टमेंट की थी
उसने तो बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, मगर उसको तो नहीं पता था कि ईरान जो है वो इजराइल पर हमला कर देगा। तो देयर आर some instances where you cannot do anything when you are in market। तो वहां पे आपने ये देखना होता है कि आपने एक जो रिस्क लिया है वो कैलकुलेटेड लिया है कि नहीं लिया। कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जो कि 100 से 50 हो जाए। तो इस तरह की चीजें भी होती है मार्केट में, बिकॉज यू आर इन रियल टाइम मार्केट जहां पे ग्लोबल चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। देन डिविडेंड एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वॉलेटिलिटी को पसंद नहीं करते, जो चाहते हैं कि भाई हमें जो है वो हम मार्केट में 100 रुपए लगाएं और हमें हर साल जो है वो वी शुड अर्न 20-25 रुपीज। फॉर देम डिविडेंड यील्डिंग, हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक इज अ गुड स्टॉक, बिकॉज देखें आप फर्टिलाइजर सेक्टर जो हमारा वो आता है हाईली डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में, बिकॉज कि फर्टिलाइजर सेक्टर इज द मेजर बिजनेस। वहां पे ये होता है कि पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री और पाकिस्तान को हर साल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, और हम जो है वो फर्टिलाइजर जो कंपनीज है हमारी वो फर्टिलाइजर बनाती हैं और उनको फार्मर्स को बेच देती हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसमें वो डिविडेंड के थ्रू अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर देती हैं। तो दैट इज कॉल्ड मेच्योर बिजनेस। तो इस तरह के डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज है जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो नहीं करते, समटाइम लोग डिसिप्लिन नहीं रहते, इमोशनल डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया 100 रुपीज और मैंने ये सोचा कि यार देखें, एक चीज जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप जब कोई चीज बाय करते हो ना, ऐसा बेसिक लेसन कि आप जब कोई चीज बाय करते हो तो आप ये कहते हो कि पूरी मार्केट गलत है और मैं सही हूँ, बिकॉज मुझे 100 रुपीज पे ये चीज सस्ती लग रही है इसीलिए मैं बाय कर रहा हूँ। यू चैलेंज होल मार्केट। और जब आप कोई चीज सेल करते हो 100 रुपीज पे, तो आप ये बात करते हो कि ये मार्केट जो है ये मार्केट गलत बोल रही है, 100 रुपए पे ये चीज महंगी है, मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि ये मुझे नीचे लगती है। तो जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हो तो आपको फिर डिसिप्लिन रहना चाहिए और इमोशनल डिसीजन जो है उससे दूर रहना चाहिए, बिकॉज समटाइम हमें ऐसा होता है कि हम इमोशनल ट्रेडिंग कर लेते हैं और हमारे इमोशनल बिहेवियर जो है वो हमें बहुत ज्यादा ऐसे नुकसान में जो है वो पहुंचा देते हैं जिसको हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया होता। फिर उसके बाद जो लास्ट होता है कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड लर्निंग, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो को ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे लोग वीकली करते हैं, बहुत सारी कंपनीज मंथली करती हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो क्वार्टरली, जब उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उस वक्त कर रहे होते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन टू पर्सन के वो कब करना चाह रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स गाइडेंस फॉर रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखें, इसमें भी वही वाली बात है कि स्टार्ट विद अ क्लियर प्लान। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं शुड एग्जिट। देखें, बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में इनिशिएट कर लेते हैं लेकिन हम उसको फिर चला नहीं सकते। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट, हम डिसीजन तो ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वेयर टू एग्जिट। तो यू शुड हैव अ क्लियर प्लान बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन आपके पास एक रिलायबल ब्रोकरेज हाउस होना चाहिए लाइक आरिफ हबीब, जहां पे आपको चीजें रिसर्च हो, जहां पे आपको पता हो कि आपके साथ कोई ऐसी आजकल बहुत सारी हमने देखा है मोबाइल पे फ्रॉडलेंट कंपनीज आ गई हैं जो कि आपको कहती हैं कि भाई आपको हमें लाख रुपए दें, हम आपको हर महीने 20,000 रुपए दे देंगे। ये इस तरह की जो फ्रॉडलेंट कंपनीज होती हैं ये बेसिकली आपको सिर्फ इंटाइस करती हैं और इवेंचुअली दे विल एंडेड अप विद अ फ्रॉड और लोग इसमें लॉस करते हैं। और तो इस तरह आपको ये जरूरी इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो रिलायबल पार्टनर है वो रिलायबल होना चाहिए और आप जो है वो रिलायबल कंपनीज के साथ ही काम करें। फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग टिप्स पे काम करते हैं कि भाई उसने बोल दिया तो मैं ले लेता हूँ, उसने बोल दिया तो मैं ले लेता हूँ। इस तरह ना करें। गुड कंपनीज हैं जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कि कंसिस्टेंट अर्निंग प्रोवाइड करती हैं, जिनके अंदर बेटर डिविडेंड यील्ड है, जो जिनके अंदर ग्रोथ स्टोरीज हैं, तो आप उनके अंदर जो है वो काम किया करें, सो दैट you can meet your ultimate objective which is wealth creation. Diversify your portfolio. We have already discussed. Monitor economic and global news. Obviously ये तो बहुत जरूरी है आजकल जिन हालात में हम रह रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स इज अ न्यू नॉर्मल, जहाँ पे डेली बेसिस पे चीजें जो है वो चेंज हो रही होती हैं। अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस। मैनेज रिस्क प्रोएक्टिवली। अच्छा, जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस पोजीशन भी अपनी पता होनी चाहिए। स्टॉप लॉस पोजीशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज 100 रुपीज पे इन्वेस्ट की है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए, 85 पे होना चाहिए। और वो अगर आपने एक बार उसको आपने
डिसाइड कर लिया तो फिर आप उस पर स्टिक रहें। ऐसा ना हो कि अगर आपने कोई चीज 100 रुपीज पे ली है, 90 पे आपने स्टॉप लॉस रखा है, जब वो 90 पे जा रहा है तो आप इमोशनली उसको कह रहे हैं कि नहीं यार थोड़ा और वेट कर ले, तो इसमें आप फिर अपना लॉस जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये जरूरी है। ये इस पे भी आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू एंड रीबैलेंस रेगुलरली, क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यूज करें। और साथ साथ एक चीज और भी मैं बताऊंगा कि बेंचमार्क देखें। स्टॉक मार्केट में जब कोई इन्वेस्ट करता है और अगर वो 20% रिटर्न कमाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिटर्न 20% अच्छा है या बुरा है। इसके लिए बेंचमार्क जरूरी है। और यूजुअली पाकिस्तान इंडस्ट्री में एज फार एज स्टॉक मार्केट गोज जनरली KC 100 जो है वो एज अ बेंचमार्क इंडेक्स यूज किया जाता है टू evaluate performance and to track performance. So usually लोग जो है KC 100 जो है वो इस्तेमाल करते हैं। And as far as Sharia compliant universe goes, लोग KMI 30 यूज करते हैं for their benchmarking purpose. बाकी learn continuously, I think it's a general thing. You should learn, one should learn on a daily basis. आप लोगों की इन्वेस्टर्स बुक्स पढ़ें, लोगों के इंटरव्यूज जो कि बहुत बड़े लोग हैं, लाइक बिजनेसमैन लाइक मोहम्मद अली तबा एंड अदर ग्रुप। और बहुत सारे लोग आते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट जिनकी अवेलेबल होती है, तो आप उनसे सीखें कि इस तरह जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है वो इम्प्रूव किया, किस तरह से उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके एम्पायर बनाई। आप देखें ना 1990s में इन लोगों ने अपनी जो है करियर को शुरू किया। 1980s और 1990 से अब तक पाकिस्तान का तो रुपया जो है वो गिरा है। तो अगर किसी ने 1980 या 1990 से पाकिस्तानी रुपए में ही सिर्फ इन्वेस्ट किया होता या पाकिस्तानी रुपए को अपने पास रखा होता तो वो आज उसका रुपए की वैल्यू काफी हद तक डिवैल्यू हो चुकी होती। जबकि अगर किसी ने इन ग्रुप्स कंपनीज में जैसे एंग्रो हो गया, लकी ग्रुप हो गया, निशाद ग्रुप हो गया, इस तरह के और बहुत सारे बड़े ग्रुप्स हैं, उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती तो उनकी वेल्थ क्रिएशन अच्छी होती। ठीक है, लास्ट हम है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आई थिंक कंपाउंडिंग जो है जिसको 8 यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कंपाउंडिंग आपको समझना जरूरी है कि अगर आप किसी चीज में ओवर टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं विद अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो उसका यू विल एंडेड अप विद अ ह्यूज वैल्यू क्रिएशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज लेट्स अज्यूम आजकल 11% इंटरेस्ट चल रहा है और अगर आप 5 साल तक 11% रिटर्न हासिल करते हैं तो इट्स नॉट 55% रिटर्न। By the end of 5th year, it will be more than 70% return because there is a compounding factor in it. So compounding is very necessary and you should understand कि compounding का क्या इफेक्ट होता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि काश मैंने जो है वो 2020 में इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज मेरे पैसे इतने हो जाते हैं, आज मेरे पैसे इतने हो जाते हैं। मगर मसला ये कि हमें पहले से नहीं पता होता। लेकिन कंपाउंडिंग अगर हम फिक्स इनकम मार्केट में है या हमें पता है किसी ऐसी कंपनी का जो कि मैच्योर बिजनेस है और वो 15 से 20% हर साल रिटर्न देता है तो हमें ये आइडिया होता है कि अगर हम हर साल 15 से 20% कमाएं तो गोइंग फॉरवर्ड हम बाय द एंड ऑफ 5 ईयर डाउन द रोड और 10 ईयर डाउन द रोड हमारी एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग फ्रॉम दिस और मैं आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं सारी चीजें किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। मिस्टर अली नजीब, कुछ क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, सो थोड़ा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल है मिस्टर अब्दुल अजीज खटक की तरफ से कि कैन वी कंबाइन दीज रिपोर्ट्स, जो कि आपने आरिफ हबीब की रिपोर्ट्स के बारे में बताया था कि हम इकोनॉमी पे कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे अनाउंस करती है, रिपोर्ट्स इशू होती हैं, तो उन्होंने उससे रिलेटेड सवाल किया है कि कैन वी कंबाइन दीज रिपोर्ट्स विद AI टूल्स टू डू प्रोफेशनल एनालिसिस फॉर अस। कैन यू प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स के मतलब क्या वो ये कर सकते हैं AI टूल पे? Sure, you can. I mean, if one is interested in कि combine करके उसका analysis किया जाए तो I think AI can do this. और second question is from Mr. Kashif Sumro, from where we can learn financial modeling? देखिए, there are lots of YouTube channels। अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है तो देयर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स जहां से आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हैं। वैसे अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है ऑन अ रियल टाइम बेसिस सो यू शुड एसोसिएट विद ब्रोकरेज हाउस। वहां पे ऑब्वियसली तो बेसिक आपको ऑब्वियसली आना चाहिए, बाकी फिर आप जो है वो वहां पे जो हेड ऑफ रिसर्च होते हैं और दूसरी रिसर्च टीम्स होती हैं, दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड टू हैव अ गुड फाइनेंशियल मॉडल ऑफ योर ओन। Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत सालों से लोग यही बातें करते हैं स्टॉक मार्केट में कि मार्केट तो टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस पे नहीं चलती है। सो यही सेम क्वेश्चन आज एक स्टूडेंट भी किया है मिस्टर काशिफ सुंगो ने कि टेक्निकल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस डू नॉट वर्क एज फॉर एज न्यूज। तो आप इसकी मैं आप गाइड करें, इनके जो माइंड में चीजें हैं वो थोड़ी क्लियर कर लें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप उनको सही चीज गाइड करें। देखें, देयर आर सम इंस्टांसेस जहाँ पे आपकी बात सही है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टॉक जिनका फ्री फ्लोट बहुत कम होता है, उसमें लोग जो है वो कुछ लोग उसको कॉर्नर करके चला देते हैं। लेकिन देखें, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है एंड यू वांट वेल्थ क्रिएशन, तो आप इस तरह की चीजें सोचेंगे तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आज सुबह जो है वो टल ब्लॉक में पाकिस्तान ऑयल फील्ड की जो डिस्कवरी आई है, तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है वो कल क्लोज हुआ था 540 541 के लेवल पे, आज वो चल रहा है 565 पे। तो 565 ये 25 रुपए बढ़ाई सिर्फ इसी वजह से है कि इसके अंदर डिस्कवरी आई है और 8 रुपए का उसका जो है वो पर शेयर इम्पैक्ट है ऑन एन एनुअलाइज बेसिस। और ये क्या कौन बताएगा? ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस ही बताएगा, बिकॉज हमारी जो रिसर्च टीम ने उसने कैलकुलेट किया कि अगर ये जो डिस्कवरी है इसको आप एनुअलाइज बेसिस पे इसका इम्पैक्ट लें तो दे विल अराइव एट 8 रुपी पर शेयर इम्पैक्ट। तो आई थिंक देयर आर इंस्टांसेस जहां पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं चलता, बिकॉज बाज़ औक़ात उनका फ्री फ्लोट बहुत छोटा होता है और कुछ लोग जो है उसको कॉर्नर करके फिर वो उसको जो है वो बहुत ज्यादा उसमें स्पेक्यूलेटिवली उसको ड्राइव करते हैं। लेकिन ये जनरल फिनोमिना नहीं होना चाहिए और किसी को भी इससे इंस्पायर नहीं होना चाहिए अगर उसको वैल्यू क्रिएशन करनी है। बाकी गैम्बलिंग के लिए अगर आपको काम करना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ बेटर एवेन्यूज या बेटर प्लेसेस जो कि स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा अच्छी जगह है जहां पे आपको गैम्बलिंग करनी है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है तो ही शुड एनालाइज लॉन्ग टर्म ऑन अ फंडामेंट फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस। एंड अगर आपको किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना है या आपको शॉर्ट टर्म बेट्स लेनी है तो उसके लिए फिर टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है। काशिफ सुंगो, आपने हैंड रेस किया है। आप अपने सारे क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डालें, वन बाय वन सर से पूछती जा रही हूँ। और सर एक दूसरा सवाल है कि प्लीज एडवाइस करें कि जैसे आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और एक कंपाउंडिंग की तरफ जाएं, तो स्टूडेंट्स का सवाल है कि मतलब कितने टाइम तक हम, मतलब हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग के हम एक ही स्टॉक्स में पैसे रख रहे हैं, या मतलब कितने टाइम तक हम रख सकते हैं? Again, it's depend on company to company. For example, in 2003, I'm talking about June 2003 specifically, साजगार इंडस्ट्रीज का शेयर ट्रेड करता था 60 रुपए का, ठीक है जी। फिर उन्होंने जाके चाइनीज कंपनी के साथ जो है वो जॉइंट वेंचर किया, वहां से अपनी जो है वो चाइना की गाड़ियां मंगवाई, जैसे फॉर एग्जांपल हैवेल है, इसके अलावा इनके और दूसरे ब्रांड्स हैं अभी जो आ रहे हैं। दैट वाज अ सक्सेस, ठीक है। वो शेयर 60 रुपए से 1200 रुपए तक चला गया, फिर 1400 रुपए भी गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि 2026 में जो है उनकी पॉलिसी खत्म होने वाली है, जो कि टैक्स जो इनको जो है टैक्स 2026 तक इनको टैक्स हॉलीडे दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो वो 2026 में एक्सपायर हो जाएगी। तो उससे ये होगा कि ऑब्वियसली इनकी जो पहले जो अर्निंग आ रही थी वो 2026 में जो है वो उस तरह की नहीं आएंगी। और फिर वी हैव अ कंपटीशन लाइक BYD और इस तरह की और मजीद जो है वो कंपनीज आ रही है पाकिस्तान में, वो उनको एक टफ टाइम देने वाली है। तो जिन्होंने 2023 में साजगार में इन्वेस्ट किया था 60 रुपए में, वो आई थिंक अब इट्स अबाउट टाइम कि वो प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देंगे, स्पेशली जब ये इनका जून का रिजल्ट अनाउंस होगा, जहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 60-70 रुपए की अर्निंग देंगे। और वहां पे ये मेरा ख्याल है अभी स्टॉक इज ट्रेडिंग करंटली एट 1130-1140 रुपए और ये शायद 1200-1300 तक जा सकता है। तो वहां पे हो सकता है कि वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो और ये फिर नीचे आ जाए, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड ये जो है इसके अंदर जो है एक टफ कंपटीशन होगा और अर्निंग जो है वो थोड़ा सा या तो स्टेबल हो जाएंगी या थोड़ा उनमें ड्रॉ डाउन आ सकता है। तो इट्स प्योरली डिपेंड कि भाई आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और उसको कितने अरसे तक रखना चाहिए। ये आप उसी वक्त उसका आइडिया लगा सकते हैं जब आप डेली बेसिस पे जो है वो अपनी जो है रीडिंग करें, डेली बेसिस पे आप स्टॉक एक्सचेंज की जो नोटिस आते हैं उनको पढ़ें, उससे फिर अपना ओपिनियन ड्राइव करें, डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस लाइक आरिफ हबीब उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ें,
डेली रिव्यूज पढ़े, उसके बाद आप एक डिसाइड कर सकते हैं। देखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जो है, इट्स अ प्रॉपर 24 आवर जॉब। ये आप ऐसे नहीं है कि आपने बस एक कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये तो एक गैम्बलिंग हो गई। बट इफ यू वांट टू मेक मनी एंड क्रिएट योर वेल्थ while investing in stock market, so it's a 24 hour 365 days job। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। Sometime there are Sundays जहां पे ऐसे ग्लोबल इवेंट ट्रिगर हो जाते हैं कि भाई आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको एक्शन लेना पड़ता है। अब रिसेंट जो देखा आपने इवेंट, अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, कब किया था? संडे मॉर्निंग को किया था। 5:12 पर ब्लूमबर्ग ने संडे मॉर्निंग को सुबह 5:12 पे ब्लूमबर्ग ने ये न्यूज ब्रेक की। अब मुझे क्यों पता है? मुझे इसलिए पता है बिकॉज सैटरडे नाइट को जब हम ये सोच रहे थे कि भाई ये मामला सारे खराब होने जा रहे हैं, तो जब सुबह मैंने देखा, सुबह उठ के अपना मोबाइल देखा, तो उसमें 5:12 पर ब्लूमबर्ग ने ये न्यूज ब्रेक की थी कि जो है ईरान, यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया है। तो आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि भाई पूरी दुनिया में जिस तरह की भी चेंजेस होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं और वो अल्टीमेटली फिर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई रूल ऑफ थंब है कि भाई आपने जो है वो अभी काम कर लिया और बाद में यू हैव अ पीस ऑफ माइंड, और इस तरह का स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है। अगर आपको इस तरह का पीस ऑफ माइंड चाहिए तो यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम, जहाँ पे एक रिटर्न फिक्स हो जाता है फॉर द होल ईयर। स्टॉक मार्केट में यू हैव टू बी ऑन योर टोज। Okay, thank you, Mr. Ali Najib, for sharing great insights about the market, technical analysis, and fundamental analysis. So, जो आपने presentation दी, it was very informative. मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ कि participants ने भी बहुत कुछ learn किया होगा और आप भी इससे benefit लेंगे। So, thank you so much for joining, Mr. Ali Najib. Thank you. It's a pleasure. जी जी। Okay, let's move to another announcement, जो कि participants के लिए एक न्यू स्पेशल अनाउंसमेंट है कि हमारे जो सेकंड विनर है मिस्टर सऊद, जो इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं करें ड्यू टू पर्सनल रीजन, सो मैं एक न्यू जो है विनर अनाउंस करने जा रही हूँ। उनका नाम है मिस्टर काशिफ हुसैन। ही इज अ न्यू विनर एंड ही इज ऑन द सेकंड। सो congratulations, Mr. Kashif Hussain, for thank you. Congratulations, Mr. Kashif Hussain, for winning the CFA scholarship. ठीक है, करते हैं सेकंड स्पीकर की तरफ। अभी हमारे जो सेकंड स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर गजनफर साकरानी, जो आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, इस सेशन के रूल्स के बारे में बताएंगे। सो वेलकम मिस्टर गजनफर साकरानी, और अपने इनसाइट शेयर करें। Assalamu alaikum, and thank you, Mehna, for giving me this opportunity, and thank you, Alisa, for such an amazing presentation. You're welcome, sir. You're welcome. I think video out. Yeah, I'll first start with the introduction of market. जिस तरह हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स क्या रहे हैं। I hope I am audible, पहले प्लीज ये भी कंफर्म कर दीजिएगा। Okay, so I'll start with the returns of the market. जिस तरह हम देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर था, कैलेंडर ईयर 2024, दैट वाज इम्प्रेसिव फॉर द मार्केट। उसमें हमारा ऑलमोस्ट 84% के अराउंड रिटर्न था। तो दिस स्लाइड शोज कि पाकिस्तान मार्केट के KSE 100 के स्पेशली 1 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स और 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स किस तरह से रहे हैं। तो यू कैन सी कि जो लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में आके आप अपना पैसा लूज ही करते हैं, उनके लिए लेसन ये कि यू लर्न टू इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन, तो आपको मार्केट जो है वो रिवॉर्ड भी करती है। कुछ साल ऐसे जरूर होते हैं जब मार्केट का रिटर्न जो है वो नेगेटिव होता है, बट ओवरऑल अगर हम अपना 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 1 ईयर ऑलमोस्ट 56% का रिटर्न है लास्ट 12 मंथ्स का। फिर ये मार्केट के बारे में कुछ अपडेट्स हैं कि ये
सेक्टर्स और स्टॉक्स, बड़े बड़े सेक्टर्स और स्टॉक्स कौन से हैं PSX में? टॉप 10 सेक्टर्स आप देख सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स है, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, ये ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा वेटिंग इनकी बनती है। प्लस टॉप 10 कंपनीज जो है वो भी मैंने लिस्ट कर दी हैं। टोटल जो हमारे पास सेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट 36 हैं, एंड जो कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे दे आर ऑलमोस्ट 533 कंपनीज। ये फैक्टर्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के वक्त कंसिडर करने बड़े ज़रूरी हैं, जिसमें से कुछ पे जो है वली साहब ने बहुत डिटेल में बात भी करी है। जैसे सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपको अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझना होता है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप मार्केट में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आ रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको शॉर्ट टर्म गेन्स मिले, बट एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी मिल रहा है। तो आपको ये सोचना है कि आप मार्केट में आ क्यों रहे हैं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन रखना है। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे जिसका हमारे कंपटीशन के कुछ रूल्स भी हैं, वो बेसिकली रूल्स का मकसद ही ये है कि वो आपको वो हैबिट डेवलप करें कि मार्केट में जो है वो आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसके अलावा आपको अगर आप कोई कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कंपनी की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिस तरह अगेन अली साहब ने जो मेंशन करा था कि रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं डिफरेंट ब्रोकर्स की अबाउट कंपनीज और सेक्टर्स के बारे में भी आती हैं, जैसे बजट अभी आया था जून में, उसके बाद हर ऑलमोस्ट काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज ने जो है वो उस बजट का सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस सेक्टर की क्या फ्यूचर परफॉर्मेंस होगी, तो इससे भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा सेक्टर जो है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाला है और कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसपे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इधर डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे होते और उस सेक्टर के लिए नेगेटिव पॉलिसीज होती तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो एट स्टेक थी। तो आपको इंडस्ट्री और कंपनी का आउटलुक और फ्यूचर प्लान समझना बड़ी जरूरी है। कंपनी की कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है, कंपैटिटर्स के मुकाबले में उसको क्या एज हासिल है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है। प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स, जैसे रिसेंट एग्जाम्पल थी अली साहब ने मेंशन करी कि ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था जो अब खत्म हो गया, बट उस जियो पॉलिटिक्स का या अगर आपके रीजन में कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है उसका आपकी मार्केट पे या आपके स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रही हैं, जैसे इन्फ्लेशन क्या चल रही है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट पे, इंटरेस्ट रेट्स अभी किस लेवल पे हैं, फ्यूचर में स्टेट बैंक की क्या स्टेट बैंक कहाँ तक लेके जा सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स को, इन चीज़ों का भी मार्केट पे एक इम्पैक्ट होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। कंपनी अगर आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी पिछली अर्निंग्स ग्रोथ क्या थी, फ्यूचर में क्या अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उस कंपनी की, उसकी प्राइस कितनी वॉलेटाइल है, कितनी ज्यादा चेंज होती है। ये आगे मैं आपको शो भी करूंगा कि अगर आप PSX के वेब पेज पे जाएं जो dps.psx.com.pk है, उस पर जाके आप कंपनी का अगर सिंबल लिखें तो कंपनी का एक पूरा चार्ट बना आ जाता है जो कि मैं आपको आगे शो कर दूंगा। उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हिसाब से कंपनी की प्राइस मूवमेंट दिख रही होती है कि पिछले 1 मंथ में क्या प्राइस मूवमेंट थी, 3 मंथ्स में क्या थी, 6 मंथ्स में क्या थी, 1 ईयर में क्या थी, एंड सो ऑन। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि कंपनी की प्राइस वेरिएशन क्या रही है। इसी तरह कंपनी के फंडामेंटल्स देखना जरूरी है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस तरह चेंज हो रही है, पिछले सालों में उसका क्या रेवेन्यू था, अब क्या रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह मार्जिन होते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो क्या कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसी पॉइंट पर आपके साथ जो है वो PSX की वेबसाइट भी शेयर कर दूं, जैसे देखा अगर फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट है उसका आपको प्राइस का आइडिया हो जाता है कि उसकी हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स क्या रही है, जैसे 1 मंथ में ये रही है। मिस्टर गजनफर, कुछ चैट बॉक्स में कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, थोड़ा आप क्लोज हो जाएं, क्लोजर मार्केट। अच्छा, अभी कंफर्म करना, अभी आवाज क्लियर है या नहीं है प्लीज? क्या सबको आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में बता दें। क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए जी। अच्छा, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आई रिपीटेड। मैं DPS की वेबसाइट दिखा रहा था, इसमें आप कंपनी की जो है हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक की आपको चाहिए आप देख लेंगे 6 मंथ्स में उसकी क्या प्राइस मूवमेंट थी, 1 ईयर में क्या थी। प्लस इधर कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ रही होती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है कुछ चीज़ें DPS की वेबसाइट भी मेंशन होती हैं। कंपनी की इनकम क्या रही है, ये इस साल की इनकम है 2024 की, हिस्टोरिकली उसकी क्या इनकम थी, उसकी अर्निंग्स पर शेयर क्या है, यानी एक शेयर अगर आपके पास है दोस्तों वो आपको कितना अर्न करके दे रहा है और हिस्टोरिकली कितना अर्न करके दिया है, ये समझना भी जरूरी है। उसके अलावा फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स क्या है, ये
ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर अर्निंग्स क्या होगी कंपनी की। इसी तरह वो टारगेट प्राइसेस भी बता रहे होते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको और आप XYZ कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि उसकी टारगेट प्राइस क्या है, कौन से मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। बैक टू द प्रेजेंटेशन। फिर ये कुछ स्टेप्स हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के, ये भी अली साहब ने कवर करे थे कि और मैं वापस रिपीट भी कर देता हूँ कि आपको टारगेट कंपनीज देखनी है, इंश्योर करने की जब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। तो जो एक पॉइंट था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो आपको पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं कि आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया या एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, बट एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर करना जरूरी होता है कि जो आप सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेम ही फंडामेंटल्स की वजह से अफेक्ट ना हो रहे हैं, यानी उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो डिफरेंट हो। अगर आपने 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है और तीनों सेक्टर्स एक ही जो उनके डिटर्मिनेंट्स हैं वो एक ही हैं या वो एक ही चीज की वजह से अफेक्ट होते हैं, तो अगेन यू आर एट द स्टेक कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर लॉस हो सकता है। प्लस जब प्राइस डिक्रीज हो रही होती है तो एक कंपटीशन में भी हमने ऑब्जर्व करा और एक जनरल परसेप्शन ये कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है हम लोग जो है वो सेलिंग की तरफ आ जाते हैं। प्राइस डिक्रीज के वक्त आप अपनी कॉस्ट एवरेजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 रुपीज पे शेयर परचेज करा था, प्राइस उसकी 28 हो गई है, तो आप मजीद शेयर्स परचेज करके अपनी कॉस्ट को भी जो है वो एवरेज कर सकते हैं। ये अगेन बैटल ऑफ द बुल्स की कंपटीशन है, जो मैं रिपीट कर देता हूँ। इक्विटी एक्सपोजर जो है आपका, वो जो आपके टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है उसका 70% से 95% तक आपका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। दैट लीव्स विद 5% to 30% ऑफ कैश एक्सपोजर। कैश रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगेन एज आई मेंशन के कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जब आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, आप फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक गिर रहा है, आप उसको उस वक्त बाय कर सकते हैं। अगर आप 100% इन्वेस्टेड हैं इन डिफरेंट स्टॉक्स और तो इतना ईजी जो है इन्वेस्ट करें, तो एट ऑल टाइम्स आपके पास जो है वो कैश एक्सपोजर रखना जरूरी है ताकि आप मजीद बाइंग भी कर सकें और अपनी कॉस्ट एवरेजिंग भी कर सकें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, टोटल जो है वो आपको एटलीस्ट 5 डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपोजर होना जरूरी है विथ नो मोर देन 25% एक्सपोजर इन अ सिंगल सेक्टर। 5 से ज्यादा भी सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सेक्टर में आपका 25% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो सकता। इसी तरह एक सिंगल स्टॉक में जो है वो आपका 15% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 मिलियन है तो आप उसका 15% निकाल के देख लें कि 15% एक्सपोजर सिंगल स्टॉक में कितना बनता है। लास्ट है पोर्टफोलियो टर्नओवर। ये जो पोर्टफोलियो चर्न है ये आपका 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपनी जो है डेली नेट बाय निकालें, कि आज आपने कितने की जो है वो परचेजिंग की है और कितने की सेलिंग करी है। इसमें से जो भी लोएस्ट वैल्यू आप उसको अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू से डिवाइड कर दें। ये रेशियो जो है वो आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसलिए रखा गया ताकि आप जो है वो फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ना हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी एक प्रैक्टिस क्रिएट हो। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की। इसमें मैंने मेंशन तो 43rd वाला करा है, लेकिन जब हमने 5 से 6 पोर्टफोलियोज को एनालाइज करा तो मोर और लेस सबके इसमें जो है वो एक यही मिस्टेक थी कि वो सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे जो 43rd वाला था इसने 3 सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेट की हुई थी। इसके अलावा एक और चीज ये थी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा सेक्टर्स में बन रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना है या 15-20 सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपको एटलीस्ट जो है वो 5 सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना। अगर आपका 5 सेक्टर्स में भी एक्सपोजर आ गया एंड पे तो वो भी जो है वो आप दैट मीन्स कि आप जो है वो कॉम्पिटिशन के रूल को कंप्लाई कर रहे हैं। बट ये भी नहीं, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप 5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, 5 से ज्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें तो आपका जो है रिटर्न ज्यादा होगा। इसकी जो लॉजिक है वो ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में। फ्रीक्वेंट इंट्रा डे ट्रेडिंग जो है ये आपको प्रॉफिट्स तो दे सकती है बट एट द सेम टाइम जो है अगेन लॉसेस भी आपको दे सकती है। जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें ये पर्सन जो है वो फ्रीक्वेंट इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे जिसकी वजह से उनको शायद उस वक्त तो प्रॉफिट हुआ होगा, बट लॉन्ग टर्म में जो है वो वही स्टॉक्स जो उन्होंने खरीदे थे उसमें से 4 स्टॉक्स ऐसे थे जिनका 40% इंक्रीज हुआ और 10 जून के बाद वो मजीद इंक्रीज हुए। तो आगे मैं जो एक टॉप परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो है उनकी एग्जांपल देके बताऊंगा कि आपको अपनी जो बाइंग एंड सेलिंग है उसमें बैलेंस किस तरह रखना है।
इसी तरह अगेन एक एग्जांपल है कि एक स्टॉक खरीदा था 14 मई को, 15 मई को बेच दिया, प्रॉफिट पे बेचा है, तो कोई बुरी बात नहीं है। बट अगेन अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड कर लिया होता तो इससे ज्यादा मजीद प्रॉफिट बन सकता था। तो पॉइंट ये है कि आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं आपको उसके पीछे की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं स्टॉक खरीद क्यों रहा हूँ। कॉम्पिटिशन में तो चले हम लोग इस तरह करते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स पे हमारा फोकस होता है, बट जब आप रियल टाइम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपने अगर ए खरीदा है उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, ब्रोकर्स उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। इसी तरह आइडल कैश अली साहब ने मेंशन करा कि अगर जो उन्होंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपने 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं तो बेसिकली आपकी पेपर पे इन्वेस्टमेंट है, और विद टाइम जो है वो उस इन्वेस्टमेंट की जो रियल वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, वो कम होती रहेगी। तो इस कंपटीशन में भी हमने 2-3 लोगों को इनफैक्ट ऑब्जर्व करा है कि उनका कुछ अर्से तक जो है वो कैश आइडल रहा है, पूरा का पूरा कैश जो है वो आइडल रहा था, जबकि इस दौरान जो है मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपना कैश आइडल रख ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल 1-2 दिन अगर आपको लगता है कि जैसे जियो पॉलिटिकल इवेंट हुआ था आप उससे बचना चाहते हैं तो आपने अपना कैश आइडल रखे, दैट इज ओके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 70 से 95% तक होना जरूरी है। इसी तरह जो टॉप परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज थे उनका क्राइटेरिया कंप्लायंस थी, वो उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी थी, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी थी। स्टॉक में भी जो है उन्होंने 7 से 8 स्टॉक्स में एवरेज उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, 15% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं है किसी का भी। प्लस जो एक स्ट्रैटेजी थी जो पिछली प्रेजेंटेशन में मेंशन हुआ था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की। अब चूंकि कंपटीशन है ही ऑलमोस्ट शायद 3 महीने का है, बट इस 3 महीने में या जब आप रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जो मैं अभी आपको केस दिखाना चाहता हूँ एक आइडियल स्ट्रैटेजी है कि आप किस तरह जो अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे पहले केस में ये है कि उन्होंने 12 तारीख को खरीदा, 13 तारीख को ऑलमोस्ट जो है वो 10% के गेम पे बेच दिया। ये शॉर्ट टर्म का केस हो गया कि आपने खरीदा और शॉर्ट टर्म में जो है वो बेच लिया। दूसरा केस देखें, 16 मई को उन्होंने खरीदा, 19 मई को बेच दिया, ऑलमोस्ट अगेन 10% का गेन था। थोड़ा अर्सा रखा स्टॉक को और फिर उसके बाद बेच दिया। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग्स बेच दी थी। काफी पोर्टफोलियोज ऐसा कर रहे हैं जिन्होंने आज अपनी फॉर एग्जांपल उनकी 8 मिलियन की होल्डिंग है, कल उन्होंने पूरी 8 के 8 मिलियन की होल्डिंग एक साथ बेच दी। ये आइडियल स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये जो अभी मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ पोर्टफोलियो जो अपना इमीडिएटली बेच दिया, कुछ जो है उन्होंने मीडियम टर्म पे रखा और कुछ जो है उन्होंने लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करा। और इसमें लॉन्ग टर्म में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करा, वो अपनी जो पोर्टफोलियो था उसको बिल्डअप करते गए। यानी प्राइस इंक्रीज हो रही थी बट जो उनके पास इनिशियली शेयर्स थे वो तो उनके पास थे, वो और शेयर्स अपने पास ऐड करते गए, जिसकी वजह से जो है उनका उस स्टॉक में एक्सपोजर इंक्रीज होता गया। और फिर थोड़े दिन के बाद जो है वो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करना बहुत आइडियल है। ये अगेन एक कंफ्यूजन नहीं होती कि क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या पार्शियल बुक करा जाए। तो इसमें देखें तो आप पूरा का पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें ज्यादा अपसाइड अब मजीद नहीं है। बट आइडियल ये होता है कि आप प्रॉफिट जो है वो थोड़ा थोड़ा बुक करते हैं। इसी तरह जो है उनकी एवरेज होल्डिंग, जो टॉप परफॉर्मर्स है उनकी एवरेज होल्डिंग 7 से 8 स्टॉक्स की ही आ रही है, 15% से ज्यादा एक्सपोजर किसी का भी नहीं। ये लास्ट में फूड फॉर थॉट है कि पैनिक सेलिंग जो है वो आपको किस तरह नुकसान दे सकती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है आपको किस तरह फायदा दे सकती है। ये 2017 से 2024 तक की एक केस स्टडी है जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते और 2017 में जो है मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 18% का लॉस दिया था, जिसकी वजह से मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 81,000 पे आ गई। और लॉस होते ही जो है वो मैंने अपनी पोर्टफोलियो जो था वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर दिया। अगले साल अगेन लॉस हुआ, मैं जो है मार्केट से दूर ही रहा। 2019 में जब मार्केट में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट देखते ही जो मार्केट में एंटर होगा, मैंने जो अपना 81,000 था उसको इन्वेस्ट कर दिया। अगले साल अगेन प्रॉफिट हुआ, मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ गई। 2022 में जब लॉस हुआ तब मैं वापस अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जो है 84,000 हो गई थी, अब मैं उसको लेके जो है मार्केट से एग्जिट कर लिया। फिर 2023 में अगेन प्रॉफिट हुआ 53% का, मैंने वापस अपनी पोर्टफोलियो को जो है जो अपनी वैल्यू थी उसको इन्वेस्ट कर लिया। अगले साल 2024 कैलेंडर ईयर में ऑलमोस्ट 70% का प्रॉफिट हुआ। तो मेरा जो पोर्टफोलियो वैल्यू थी जो मैंने आज से 2017 में जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था वो 1,44,000 हो गया। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा होता, मैं पैनिक सेलिंग ना कर रहा होता, तो यही पोर्टफोलियो जो है वो 2,13,000 तक चला जाता है। यानी जो मेरा एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है वो पिछले केस में ऑलमोस्ट 4% था और इस केस में 10% था। तो हमें एक बैलेंस रखना चाहिए कि कुछ चीजों को चले हम शॉर्ट टर्म सेलिंग कर देते हैं बट पैनिक सेलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं वो क्यों परचेज कर रहे हैं, उनकी क्या फ्यूचर आउटलुक्स हैं और इसके लिए जो बेस्ट कॉन्टैक्ट
आप कर सकते हैं वो जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज आप उनसे जो है उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं या उनसे आप कांटेक्ट करके जो है जिस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है उसकी पूरी डिटेल्स दे सकते हैं, उसके फ्यूचर टारगेट प्राइसेस क्या है और उसकी अर्निंग्स में कितना पोटेंशियल है। तो आई थिंक बेस्ट कांटेक्ट पॉइंट जो है आप ब्रोकरेज हाउसेज। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Gazanfar, for today's session. Your explanation of the stock market, competition rules, and portfolio example was super helpful and easy to understand. Really excellent guidance. Thank you so much. और एक दूसरी बात कहनी थी मुझे to all participants कि आप अपनी 1 मिनट की वीडियो क्यों नहीं शेयर करें। It's request to all the participants to send a 1 minute video sharing your investment strategy for the Battle of the Bulls. In the video, tell us how you are planning to build your portfolio, what sectors you are focusing on, or any smart moves you are thinking of making. So it's a great chance to showcase your thinking, inspire others, and maybe even get featured. So अभी कुछ लोगों के सवाल आए हैं मिस्टर गजनफर। SSH टेलीकॉम नाम तो नहीं आ रहा। Can we have ETFs of different sectors in PSX? जिसका मैंने जवाब दिया था कि अभी जो है वो बैंकिंग सेक्टर का टोटल तो PSX में 9 ETFs हैं, जिसमें से 2 इस्लामिक हैं, लेकिन सेक्टर वाइज अगर आप पूछे तो एक बैंकिंग सेक्टर का ETF है, GS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर। And all participants के आप एक चीज नोट कर लें कि participants ranking जो है on leaders board it can vary it based on your performance whether or not they are fulfilling the investment criteria and on violation of rules set by PSX. So PSX holds the right to disqualify any participants at any time of the competition. So thank you all participants for joining this session और Miss खदीजा और काशिफ हुसैन को once again congratulations। और मैं आप दोनों को कहूंगी कि आप दोनों अपनी वीडियो शेयर करें, आप दोनों विनर्स हैं और आई होप कि आप एंजॉय करें सेशंस को और बैटल ऑफ द बुल्स कंपटीशन को भी। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।